کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس جلسے کی سرپرستی پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، یادگار اسلاف، منبع اخلاص، حضور تاج صوفیہ، مبلغ مذہب اسلام حضرت علامہ الحاج شاہ سید شمس اللہ جان المعروف سرکار بابو حضور سجادہ نشین خانقاہ سمرقندیہ دربھنگہ شریف، اور ان مقدس علماء کرام کی موجودگی ایک شعر میں پڑھتا ہوں، اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میری گفتگو اس حوالے سے ہوگی۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، قوم کی بیٹیوں تمہارے لیے بھی یہی ہے، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا مبلغ عطا کیا جو لوگوں کو حق کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو منہیات شرعیہ سے روکتا ہے۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی سب سے بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں تمامی امتوں میں چن لیا ہے۔ کس لیے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روک دو۔ تو غور سے سنیے گا، آج کون ہے جو لوگوں کو گناہ سے روکے گا؟ کس کی ہمت ہے جو لوگوں کو برائی سے روک دے؟ پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی امیروں کے ساتھ سختی سے پیش آتے اور ان کے درمیان سختی سے اسلام کی تبلیغ کرتے، لیکن اگر کوئی غریب مل جاتا تو سرکار بڑے پیر دستگیر اسے نرمی کے ساتھ اسلام پیش کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیروں کا دل سخت ہوتا ہے، اگر ان کے سامنے سختی سے اگر اسلام کو پیش نہیں کیا گیا تو صاحب پھر وہ اسلام کو اپنے گھر کا کھلونا بنا لیں گے۔ جیسے آج جہیز کے لالچی لوگوں نے جہیز کو کھلونا بنا دیا۔ آج کے اس پرفتن دور میں شرابی کو اے بیٹا اے چلو للو کلو کہاں جا رہا ہے؟ ابھی تک بیٹھا تھا اور ابھی فوراً جانے لگا۔ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ کل بروز محشر پیچھے ملنے والا ہے۔ یہ جلسے جلوس اس لیے نہیں سکتے کہ یہاں پر آؤ، میلوں میں مٹھائیاں خریدو، میلوں سے کھلونے خریدو، ہماری قوم کی بیٹیاں آئے کھلونے خرید کر گھروں کو چلی جائیں، بلکہ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں مرد آئے تو کردار مصطفیٰ لے کر جائے، عورتیں آئے تو سیرت فاطمہ زہرا لے کر کے۔ سماج یہ اٹھتا ہے، سماج میں صاحب اب حق بولے گا کون؟ مسجد کا امام بولے امامت سے ہٹا دیا جائے، مدرسے کا پرنسپل بولے چندہ بند کر دیا جائے۔ صاحب پیر بھی ڈرتا ہے، اگر بول دیا تو مرید بلانا چھوڑ دے گا، اس لیے بڑے بڑے پیر لوگ وی آئی پی ولیموں میں شامل ہوتے ہیں، نکاح کی مجلسوں میں پلین سے آتے ہیں، مگر ایک بار بھی نہیں پوچھتے بیٹا تم جو وی آئی پی ولیمہ اور وی آئی پی نکاح کر رہے ہو لڑکی والے سے تم نے کتنا جہیز مانگا ہے؟ اس لیے کہ اس پیر کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کہہ دیا تو میرا لفافہ کم ہو جائے، میرا نذرانہ کم ہو جائے گا۔ ایسے پرفتن دور اور پرآشوب ماحول میں
अल्लाह ने हमें एक ऐसा पीर भी खानकाहे समरकंदिया से अता किया है। निकाह नहीं पढ़ाता, आने वाले से पूछता है बता निकाह तो उसी वक्त पढ़ाऊंगा जब तू शरीयत पे अमल करता हुआ राहे खुदा में आया हो। खूब गौर से सुनिएगा साहिबों, आज आप समझते हो लेकिन याद रखना आज कौन है जो बोलने को तैयार है? तूने जहेज मांगने की कोशिश की है या तूने जहेज की रकम को लिया है? साहब अगर लिया है तो जा, जमाना मेरे खिलाफ हो जाए मगर मैं कभी तेरा निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। जाहिर सी बात है अगर हर पीर ऐसा हो जाए, सूद का नाम बदल दिया जाएगा। जैसे लोगों ने IPL, BPL 20 में जुए का नाम बदल दिया, ऐसे ही आने वाले दौर में जहेज का नाम भी बदल दिया जाएगा। अंदर सेटिंग करेगा, तुम हमें इतने पैसे देना मगर सबके सामने कहना मांगा नहीं, मैंने तोहफे में दिया। अल्लाह बदल दिया जाएगा। इसलिए साहिबों वो अच्छी तरह याद रखिएगा, जिंदगी में आप जो VIP वलीमा खाते हैं ना, अल्लाह के एक वली ने किसी से पूछा बताओ खाना खाने का तरीका क्या है? कहा खाना खाने का तरीका ये है बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाया जाए, छोटा छोटा लुत्मा लेकर के खाया जाए, खाना खा करके दुआ पढ़ी जाए। कहा तब तुम्हें खाना खाने का तरीका नहीं मालूम है? कहा तो फिर करना क्या है? कहा खाना खाने का तरीका ये है पहले ये देखना है खाना हलाल का है या हराम का है। ऐ लोगों, शादियों में जाते हो, निकाह की पार्टियों में जाते हो, ये मिशन तभी कामयाब होगा जब तुम VIP वलीमा पे पहुंचकर खाना खाने से पहले एक बार खिलाने वाले से पूछ लो, वो खिलाने वाले ये जो मुर्ग मुसल्लम है, ये जो बिरयानी है, ये जो पेप्सी कोको कोला है, ये पूरा जो डिश का तुमने इंतजाम किया है कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का तो नहीं है? जैसे जहेज का मांगा हुआ पैसा हराम है वैसे ही हराम पैसे का खाना भी हराम है। तुम वहाँ से अगर जहेज का पैसा लेकर गनीमा किया है तो वहाँ से पलट करके वापिस चले आना, उस खाने को हाथ न लगाना। याद रखना इस्लाम के शहजादों, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम प्रोफेसर हो, आलिम हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, याद रखना मैं तुझे ये पैगाम देना चाहूंगा सरकार बाबू हुजूर की तरफ से। ऐ लोगों, आज के जलसे से ये वादा करके जाओ कि हम बारात न ले जाएंगे, मस्जिद में जाकर निकाह करेंगे, अगर किसी लड़की वाले से जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। वरना आज का हाल ये है शादी के बाद बीवी के साथ सेल्फी लेता है, फेसबुक पर डालता है, लिखता है आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता हूँ। बीवी कमेंट में लिखती है जालिम तू मुझसे प्यार करता है, बता अगर प्यार करता था तो बता मेरी जोड़ी उठने से पहले मेरे बाप की जमीन किसने बेचवा दी? मेरी हाथ में मेहंदियां को लगने से पहले मेरी माँ के जेवरात किसने बेचवा दिए? मेरी भाई की कमाई किसने खत्म करा दी? बता। अरे मोहब्बत तू नहीं करता, तू तो मेरे घर पे दौलत लूटने के लिए गया था। मोहब्बत तो मैंने की है जो अपनी माँ को छोड़ दिया जिसकी गोद में मैं पली हूँ, अपने बाप को छोड़ दिया जिसके कांधे पे मैंने खेला है, मैंने जिस घर में बचपन में आके खोली, जवानी की दहलीज तक कदम रखा, हमने निकाह के बाद तेरी मोहब्बत में उस घर को छोड़ दिया है। बता, हमने तो अपने भाई को छोड़ा तेरी मोहब्बत में, बहनों को छोड़ा तेरी मोहब्बत में, माँ बाप को छोड़ा तेरी मोहब्बत में, खानदान को छोड़ा तेरी मोहब्बत में। बता, एक लड़की अपनी तेरी मोहब्बत में अपना खानदान छोड़कर आ रही है, क्या तू उस दुल्हन की मोहब्बत में कभी जिंदगी में जहेज नहीं छोड़ सकता? अरे बोलिए, छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है? कितने नौजवान छोड़ना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। बस
बस यही दो चार नौजवान, बाकी क्या लेना चाहते हैं? इसलिए पूरा मजमा हाथ उठाइए साहब, पूरा मजमा, एक एक आदमी। साहब ये मिशन है बुजुर्गों का, आपको शराब से बचाना, आपको जना से बचाना, आपको हराम से बचाना। आज ताज्जुब की बात है, आज अफसोस का मकाम है। ऐ नौजवानों, अपने बाप से कहना, मेरे बाप सुनो, तूने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, मगर खुदारा मुझे ससुराल में न भेजना, मुझे ससुराल में ले जाकर के गिरवी न रखना। तेरा बाप कहेगा पैसा नहीं लूंगा तो तेरी बारात कहाँ से जाएगी? कहना बाप, बारात जाए या न जाए, बता बुजुर्गों की कितनी बारातें गई है। हम मस्जिद में निकाह कर लेंगे, पूछेगा फिर वलीमा कहाँ से होगा? कहा हमें वलीमा की भी जरूरत नहीं है, हम VIP वलीमा नहीं करेंगे, वलीमा आका की सुन्नत है। हमने ये सुना ही नहीं बल्कि पढ़ा है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती के बाद जो आका ने मदीने में वलीमा किया, वो साहब खाने का वलीमा नहीं था, बल्कि एक प्याले दूध से आका करीम ने वलीमा किया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, कर्ज लेकर तुझे बारात में जाने की जरूरत नहीं है, किसी की जमीन को सिवाकर मोटरसाइकिल खरीदवाने की जरूरत नहीं है, किसी की जमीन को 500 बारातियों के खाने का इंतजाम कराने की जरूरत नहीं है। तुम साहब अपने बाप से कह देना, हम मस्जिद में जाकर निकाह कर लेंगे और शादी के बाद चंद उलमा को बुलाकर चाय और बिस्किट से वलीमा कर लेंगे, मगर जिंदगी में कभी जहेज के करीब बोले, कभी जहेज के करीब नहीं जाएंगे। आज के जलसे से सीख करके जाओ साहब, आज यही वजह है, आज हमने हराम की कमाई को जिंदगी का जरिया बना लिया, हमने हलाल और हराम की तमीज को भुला दिया। आज यही वजह है, आज कौन हक बोलने को तैयार है? साहिबों हक बोलिए, समाज में जहाँ रहिए। मैं तो कहता हूँ आज साहब एक पीर का 1 लाख मुरीद है, एक पीर का 1 करोड़ मुरीद है। आप भारत के बहुत बड़े पीर हैं, तो आप ऐलान कर दीजिए मेरे मुरीद हो तो जिंदगी में कभी जहेज न मांगना। साहब ऐसे कितने पीर आपको समाज में मिलेंगे जो नबी की सुन्नत पे चलने वाले हैं, आका करीम की सुन्नत पे चलकर जमाने को तब्दील करने वाले हैं। कसम खुदा की ये महीना पीराने पीर दस्तगीर का चल रहा है, जो पीरों के पीर है, मीरों के मीर है। उनके वालिद गिरामी ने क्या किया था? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त महीनों भूखे रहते थे, साहब हफ्तों भूखे रहते थे, दरियाए दज्जला के किनारे टहल रहे हैं, देखते हैं एक सेब दरिया की सतह पे बहता चला आ रहा है। सेब को उठाया, उठाने के बाद खा लिया, भूख लगी थी, खाने के बाद सोचते हैं ये सेब हलाल का है या हराम का है। आज तूने कभी लुकमा खाने के बाद नहीं सोचा ये हलाल का है या हराम का है? बुरा न मानना, आज बेटे की शादियों में 50 जोड़े कपड़े तुम मांगते हो, 5 बहनोई के लिए, 5 बहन के लिए, 5 भाई के लिए, 5 भतीजों के लिए। हाजी साहब है, कहते हैं 5 मेरे भाई हैं उनके लिए भी। हाजी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात को बुरा न मानना, बताओ निकाह के वक्त जो तुम कपड़ा मांगते हो ये तो लड़की वाला मजबूरी में देता है, नहीं दूंगा तो रिश्ता नहीं होगा। एक शादी में 1 लाख के कपड़े खरीदवाते हो, 50 लोग के कपड़े में 50,000 के कपड़े खरीदवाते हो। कभी सोचा है कि ये रिश्वत के पैसे के कपड़े को पहनकर जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज भी होगी कि नहीं होगी? कभी तुमने ये सोचा है? बता, तू निकाह करके आता है और जहेज में मांगे हुए कपड़े को पहनकर साहब शौहर भी नमाज पढ़ रहा है, बीवी भी नमाज पढ़ रही है, दामाद भी नमाज पढ़ रहा है, बेटी भी नमाज पढ़ रही है। बताओ तेरे सजदे कैसे कबूल होंगे जब तूने रिश्वत वाला कपड़ा पहन लिया है? इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जब रिश्तेदारों के यहाँ शादियों में जाओ ना, कहना देखो हमें बुलाना जरूरी नहीं है, हम बारात नहीं जाएंगे, मेरे लिए कभी कपड़ा ससुराल से न मांगना। अल्लाह मुझे जो तौफीक देगा हम पहनकर सजदे तो कर लेंगे, मगर मांगी हुए जहेज में कपड़े को पहनकर कभी नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। जिस दिन आपने
देना छोड़ दिया, उस दिन कसम खुदा की लोग मांगना भी छोड़ देंगे। लेकिन आप तो भूल गए हैं, आप सोचते हैं कपड़ा अच्छा हो चाहे हलाल का हो या हराम का हो, आप सोचते हो खाना बेहतर हो चाहे हलाल का हो या हराम का हो, मगर ये सरकार गौसे आजम के वालिद किरामी है, हजरत अबू सालेह है, फिराने पीर के वालिद किरामी है। एक ही सेब खाया था, पता लगाते लगाते दरिया किनारे चलते चलते बागीचे में पहुंच गए। सेब के बागीचे में पहुंचे, देखा एक अल्लाह के वली बैठे हैं, हजरत अब्दुल्ला सौमई बैठे हैं, वो भी अल्लाह के मुकद्दस वली है। करीब गए, सलाम किया, कहा हुजूर ये बागीचा आपका है? कहा हाँ मेरा है। कहा हुजूर इस बागीचे में सब सेब के जो दरख्त है, कुछ सेब की डालियां दरिया की सतह पर है। कहा है? कहा हुजूर सेब तो दरिया की सतह पे गिर जाता है। कहा गिर जाता है? कहा बह भी जाता होगा। कहा बह भी जाता है। कहा लोग उसे खा लेते होंगे। कहा खा लेते हैं। कहा हुजूर मैंने भी एक सेब खा लिया, मैंने भी एक सेब। अगर एहसास आज तो हमें हराम खाकर एहसास नहीं है, हम औलादों के लिए ताबीज़ें लिखवाने जाते हैं, तुम हलाल खाओ इंशाअल्लाह औलादे भी देखो जाए। हलाल खाओ, हलाल खाओ इंशाअल्लाह, फिर देखो माजरा क्या होता है। अल्लाह अल्लाह मेरी कौम के शहजादों सुनो। कहा अच्छा तूने एक सेब खाया है? कहा हाँ। कहा हुजूर चाहे तो आप इसे माफ कर दे और चाहे तो इसका बदला ले ले। सुना है ना मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। कहा था सेब तो बहुत खाए थे, मगर अब्दुल्ला सौमई ने कहा नौजवान सेब तो बहुत खाए हैं, आज तक कोई माफी मांगने नहीं आया, ये पहला नौजवान है जो माफी मांगने आया है। अगर इसे माफ करके छोड़ दिया तो फिर इस नौजवान से मुलाकात नहीं होगी। कहा नौजवान माफ कर दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा 12 साल बागीचे की खिदमत। हम और आप तो बात है की हो तो माशाअल्लाह कहते छोड़िए ना, जो होगा हम देख लेंगे। आज का इंसान बड़ा डर है ना, जो होगा देख लेंगे। लेकिन सोचो जिस गौस के तुम फातिहा कराते हो, उनके वालिद ने एक सेब की माफी के लिए 12 साल गुजार दिए। तूने कभी लड़की के बाप से माफी भी मांगी है कि हमने जो आपसे जहेज की रकम मांगी माफ कर दीजिए? तू तो गुरूर करता है, तू तो तकब्बुर करता है, तू तो उस बहू पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता है। जैसे तेरी बेटी बेटी है वैसे ही आने वाली दुल्हन भी तेरी बेटी है। बताओ बेटी के नाम पर कोई जहेज मांगता है क्या? इसलिए जरा खूब इसे गौर से याद रखना। साहब हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा 12 साल बागीचे की खिदमत करो। अल्लाह अल्लाह साहब हजरत अबू सालेह तैयार हो गए, 12 साल बागीचे की खिदमत करते रहे। 12 साल के बाद अब्दुल्ला सौमई ने कदम रखा, रखने के बाद कहा नौजवान कुछ मेहमान आए हैं, फल तोड़कर लाओ। सरकार गौसे आजम के वालिद गए और दरख्त से फल तोड़ करके कच्चे पक्के जो भी मिला टोकरी में लेकर के आ गए। हजरत अबू सालेह पे जब नजर पड़ी अब्दुल्ला सौमई की, कहा नौजवान 12 साल से बागीचे में हो, इतना भी पता नहीं कच्चा सेब कैसा होता है और पक्का सेब कैसा होता है? उसने कहा, उन्होंने कहा हुजूर कसम ले लीजिए मैंने 12 साल बागीचे की खिदमत की है, मगर एक बार भी दरख्त की तरफ निगाहों को उठाकर नहीं देखा है, फल की तरफ निगाहों को उठाकर नहीं देखा है। कहा नहीं देखा तो एक सजा और बढ़ गई, एक सजा और बढ़ गई। कहा हुजूर क्या? कहा मैं तुझे माफ कर दूंगा मगर मेरी एक बेटी है, अंधी है, बहरी है, लूढ़ी है, लंगड़ी है, निकाह कर लो। याद रखना, याद रखना, एक बार भी नहीं कहा लूढ़ी लंगड़ी बहरी नहीं चलेगी। तुम्हारी तरह सैकड़ों लड़कियों की तस्वीर देखकर रिजेक्ट कर देते हो, सब लगाते हो, तुम्हारे माँ बाप रिजेक्ट कर देते हैं। नाक बेहतर नहीं है, कान बेहतर नहीं है, आंख बेहतर नहीं है, होठ मोटे हैं, रिजेक्ट कर देते हो। मगर उस अल्लाह वाले ने कहा हुजूर अंधी लूढ़ी लंगड़ी बहरी चलेगी मगर दीनदार है कि नहीं? दीनदार है कि दीनदार है कि नहीं है? 2 मिनट मैं अपनी माँ बहनों से
मुखातिब हूँ इस बात को लेकर। अल्लाह के नबी ने सरकार मौलाए कायनात से क्या कहा? ऐ अली, आपके पास महर देने के लिए कुछ है? हजरत अली ने कहा, आका जी मेरे पास महर देने के लिए कुछ नहीं है, एक जीरा है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बताओ जिस शहजादे के पास रहने के लिए मकान न हो, जिस शहजादे के पास सोने के लिए जमीन न हो, साहब जिस शहजादे के पास छत का आसमान न हो, फिर भी आका ने एक बार भी नहीं कहा, अली उस वक्त तक फातिमा नहीं जाएगी जब तक कि तुम मकान नहीं खरीद लो। नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने बताया, फअज़फरू के साथी दीन, दौलत देखकर दामाद न तलाश करना, बल्कि तकवा और परहेजगारी देखकर दामाद तलाश करना। आज का कोई बेटी वाला होता, कहता जिसके पास कुछ नहीं हम उसके रिश्ता कैसे करेंगे, सब कुछ दे देंगे। मगर आका करीम जानते थे ये अली है, मुट्ठी बंद करके दे दे तो इससे मोती बन जाया करता है। ये अपने लिए नहीं जीते, ये तो कौम के लिए जीने के लिए आए हैं। सबकी जिंदगी अपने लिए नहीं होती है, इसलिए इस्लाम के शहजादों खूब इसे याद रखना। बेटियों का निकाह करो तो भी दीनदारी को तरजीह दो, और बेटों का निकाह करो तो भी दीनदारी को तरजीह दो। कहा था अब्दुल्ला सौमई ने, बेशक मेरी बेटी बड़ी नेक है, तू निकाह कर ले। अब्दुल्ला सौमई ने निकाह पढ़ा दिया। अबू साले जब पहली रात को पहुंचे, देखा हसीन और जमील खूबसूरत लड़की बैठी है, चेहरे से साहब नूर के कतरात टपक रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐसे आलम में अब्दुल्ला सौमई बाहर खड़े हैं और अबू साले ने की जब नजर पड़ी फौरन कमरे से बाहर निकल गए। निकलने के बाद जो ही निकले, अब्दुल्ला सौमई ने कहा, नौजवान घर जाओ, बताओ क्यों वापिस आ रहे हो? कहा हुजूर आपने जिससे निकाह पढ़ाया वो तो लूली लंगड़ी और बहरी है, लेकिन जो घर में बैठी है कमरे में ये तो बड़ी खूबसूरत है, हाथ भी ठीक है, पाँव भी ठीक है, आंखें भी ठीक है, न लूली है, न लंगड़ी है, न बहरी है, न अंधी है। कहा ए नौजवान, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए नहीं कहा कि उसे दिखता नहीं है, मैंने तो अंधी सिर्फ इसलिए कहा कि उसने बचपन से लेकर जवानी तक किसी गैर को देखा नहीं है। इस्लाम की शहजादियों, जब माँ इतनी नेक हो कि बचपन से जवानी तक गैर को न देखे, और बाप इतना नेक हो 12 साल बागीचे में रहे मगर कभी फल पे नजर न डाले, जब ऐसे पाकीज़ा दुल्हन का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी कहते सुनिए, ये सोचकर कि इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं आपको आखिरी पैगाम देना चाहूंगा। आप चाहते हो शराबी भी बने रहो, जहेज का पैसा भी लेते रहो, निकाह की शुरुआत हराम से करो, और सोचते हो तुम्हारी औलादे भी नेक हो, तुम्हारे बेटे और बेटियां भी नेक हो। नहीं, अपने निकाह और शादी की शुरुआत और शादी की जिंदगी की शुरुआत जहेज से न करना, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत से करना। जब दूल्हा बन के निकलना तो बावजू होकर दूल्हा बनना, नमाज पढ़ के ससुराल को जाना, और जब दुल्हन आए तो मेकअप की फिक्र न करे, खुदा की बारगाह में आने के बाद ससुराल में सर बसुजूद हो जाए, दुआ मांगे मौला इस घर को मेरे लिए रहमत और बरकत का जरिया बना। आज सारी दुनिया की औरतें मजहब इस्लाम पर उंगलियां उठा रही है। हम दुनिया की सबसे हसीन और जमील और कामयाब लड़कियां हैं। सुल्तान रजा उन सारी लड़कियों को कहेगा, तुम्हारी कामयाबी तुम्हें मुबारक हो, लेकिन जितनी कामयाब लड़कियां हैं उनसे मेरी गुजारिश है, एक लड़की ऐसी लाओ जो बहुत कामयाब है ना, तो तुम इंजीनियर हो, पेट से एक बच्चे को इंजीनियर बना के जन्म दे दो। तुम डॉक्टर हो, पेट से एक बच्चे को डॉक्टर बना के जन्म दे दो। तुम प्रोफेसर हो, पेट से एक बच्चे को प्रोफेसर बना दो। अरे कुछ नहीं, बहुत इंग्लिश पढ़ती हो तो पेट से ही
कहीं ए से जेड तक पढ़ने वाला बना कर दे दो, लेकिन हम जिस गौस की बात कर रहे हैं उनकी माँ फातिमा उम्मुल खैर, जिन्होंने कभी गैर को नहीं देखा, पूरी जिंदगी सैयदा खातून जन्नत की सीरत पे अमल करती रही। उस माँ ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जिलान में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही बेटे को 18 पारा का हाफिज है। जिंदगी की शुरुआत निकाह का पाकपन, निकाह की महफिल का इनेकाद ऐसे बुजुर्गों की क़यादत में होगी तो इंशाअल्लाह शराब से बचोगे, ज़ना से बचोगे, जहेज से बचोगे, बेहयाई से बचोगे, बुराई से बचोगे। तो तेरी गोद में गौस जन्म नहीं लेंगे तो कम से कम गुलामे गौस तो जरूर जन्म लेगा, लेकिन नाचते हुए जाओगे और नाचते हुए तेरी बीवी आएगी। साहब तुम शादियों की महफिलों में शराब पियोगे, तुम अपनी महफिलों को जहेज के पैसे मांगकर लड़की वालों के दिल को दुखाओगे, डोली उठने से पहले उसकी जिंदगी गुजार दोगे। तो तेरी गोद में कोई वली, कोई कुतुब और अब्दाल जन्म नहीं लेंगे, नाचने वालों की गोद में नाचने वाले ही जन्म लेंगे। आज यही वजह है औलादे हैं मगर फरमा बरदार नहीं है, बीवी है मगर वफादार नहीं है, शौहर है मगर फरमा बरदार नहीं है। साहब तुमने अपनी औलादों को जब बेच ही दिया तो क्यों कहते हो कि ससुराल का इतना ख्याल क्यों करते हो? तुमने उस वक्त अगर ख्याल किया होता तो कसम खुदा की तेरी औलाद का इरादा नहीं बदलता। इसलिए साहिबों बेटियों से भी प्यार कीजिए, बहनों से भी मोहब्बत कीजिए, जहेज जैसी लानत से दूर रहिए। कुरान ने कहा तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह ने तुझे लोगों में से चुन लिया है इस काम के लिए। तो ऐसे ही लोग हैं जो चुने गए हैं, जिनके बारे में कुरान ने कहा तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हैं, लोगों को बुराई से रोक देते हैं। साहिबों गरीबों को रोकना आसान है, कमजोरों को रोकना आसान है, कामयाबी तो जब है जब अमीरों को रोक दिया जाए। कहा इमाम इश्क व मोहब्बत ने करूं मदहे अहले देवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने का, मेरा दीन मारे ना नहीं। आज जो सरकारें हुजूर ने साहब काम किया, जमाने को मैसेज और पैगाम मस्जिद में दिया। जो दूल्हा पहुंचे थे पूछा जहेज लिए हो, एक ने कहा नहीं लिया, चलो निकाह पढ़ा देता हूँ। एक खामोश रहा, मतलब लिया तो कहा कि उसके घर वालों ने कहा कौन बगैर लिए करता है, कहा जब लिया तो जा उसी से निकाह पढ़ा लेना जो जहेज लेता होगा, हम तेरा निकाह नहीं पढ़ा सकते। इसका मतलब है साहब आज भी न मसल्ले बिके हैं न असली फकीरों का मिजाज बिका है। साहब याद रखिएगा ये तो उस करबला वाले के बेटे हैं जिन्होंने फैजान बाबू हुजूर, फैजान हुजूर आई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्होंने हक बोलकर बताया हम उस करबला वाले के शहजादे हैं जिसने यजीदियों के सामने खड़े होकर कहा तुम्हारी हुकूमत को हम ठोकर मारते हैं मगर नाना की शरीयत पर आंच नहीं आने देंगे। इसलिए हर पीर को इन बुजुर्गों से सबक सीखने की जरूरत है, हर आलिम को इनसे सबक सीखने की जरूरत है। काश हमारा हर कायद हर मुबल्लिग ऐसा हो जाए तो इंशाअल्लाह नहीं तेरा नसीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहिद है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर, तू दहर में नामे साकुवत इश्क से हर पस्त को आला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, पूरा मजमा मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।